Dear students, welcome back to the session of class 8th math subject. Today we will start our exercise number 5.1 from chapter square and square root. Okay, the meaning of square is multiplying a number by itself two times, and square root means any number which raised to power 1 by 2, means square is any number raised to power 2 and square root is any number raised to power 1 by 2. Now this is this was the in the previous lecture we discussed about the square of first 30 natural numbers, and you all should know about the square of first 30 natural numbers. मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. So dear students, now we are going to start our exercise number 5.1. Okay, so here how to find the square of following numbers, means find the square of following numbers. The first number is 19. So 19 ਦਾ square जो है ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? देखो 19 ਦਾ square ਦਾ मतलब है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ 90 ਨੂੰ दूसरी बार मल्टीप्लाई कर देना है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है तो ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर मिल जाएगा. तो 19 ਦਾ square एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ 361 ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ 19 ਦੀ 90 ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ 19 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ. 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 81 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एंड 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, तो ਇਹਨੂੰ 01 ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਦੀ 9 ਔਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ. तो 9 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਮਿਲੇਗਾ. तो 18 ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹੂਗੀ. तो ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. 1 + 0 1 ਆ ਗਿਆ, 6 8 + 8 16 ਆ ਗਿਆ, 1 ਕੈਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1 + 1 2 2 + 1 3. तो ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 361 ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ. तो आर आंसर इज राइट. उस तो बाद नैक्सट है जी 41 का स्केयर. तो प्यारे विद्यार्थियों इदी तुसीं 41 का स्केयर जिहड़ा तुसीं फाइंड करोगे, 41 के स्केयर तो मतलब है 41 × 41 विच विल कम आउट टू बी 1681. ओके, नैक्सट साडे को 11 जो कि माइनस का है. तो बच्चों माइनस जदों भी आ गया साइन, तो तुसी अगर उसका स्केयर कर दो, यानी कि नैगेटिव नंबर का वर्ग, ठीक है, नैगेटिव नंबर का स्केयर जिहड़ा है वो हमेशा ही पॉजिटिव होंदा है, क्योंकि माइनस ना माइनस इत्थे कट जाणगे. तो 11 11 सारे विद्यार्थियों को पता होएगा 11 × 11 कितने होंदे ने 121. तो इसका आंसर आ जाएगा 121. उस तो बाद नैक्सट है फ्रैक्शन का. फ्रैक्शन का जो स्केयर करना है तो प्यारे विद्यार्थियों फ्रैक्शन की करना है, तुसी 3 का स्केयर अलग करना है और 7 का स्केयर जिहड़ा है वो अलग करना है. 3 × 3 कितना हो गया 9, तो 7 × 7 हो जाएगा 49. तो 3 × 3 9 और 7 × 7 कितना 49. तो 9/49 ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगला साडा ਜਿਹੜਾ सम हैगा वो भी ਅਸੀਂ ਹੁਣ कर ਲੈਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੈ 1 ਸਹੀ 1/2. ठीक है, 1 सही 1/2 ਦਾ मतलब है ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 × 2/3. ठीक है, तो ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋਗੇ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 3 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, 3 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 1 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. तो 3 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5, 5 ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3. ਤੇ 5/3 ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ ਕਰੋਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. 5/3 ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 25 ਆ ਗਿਆ, 3 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 3 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 9 ਮਿਲ ਗਿਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 25/9. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 1.7. 1.7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ. तो प्यारे विद्यार्थियों अगला जिहड़ा सम है साडा वो असीं हुण इत्थे करन जा रहे हां 6th नंबर. ठीक है, नंबर 6 जिहड़ा सम है साडा
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 6 ਨੰਬਰ 6 ਕੀ ਹੈ 1.7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਇਆ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਟਾ ਓਵਰ, ਓਵਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਇਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ 1। ਔਰ ਡਿजिट ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी कि ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿजिट ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿजिट ਨੇ ਇੱਥੇ 1, तो जिन्ने डिजिट होंगे उन्नियां जीरो लगा देनियां, ठीक है। पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने 7 आ, 7 एक ही डिजिट आ, तो एक जीरो लगाती, तो 1.7 का मतलब हुंदा है पॉइंट हटाया ओदी जगह 1 लगाया, 1 तो बाद जिन्ने भी डिजिट ਹਨ ਇਹ मतलब डिजिट ਇਹ जो साडा पॉइंट है पॉइंट तो बाद जिन्ने भी डिजिट ਹਨ ਉਹ उन्नियां ही जीरो ਅਸੀਂ लिख देनियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। ਤੇ प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि वर्क करना है तो 17 ਦਾ ਸਕੁਅਰ और 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਓ 17 into 17 ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 into 10, ठीक है। 10 into 10 कितना ਹੁੰਦਾ है 100 और 7 into 7 कितना हो गया 280, 17 into 17 ਹੋ ਗਿਆ 289। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿजिट ਛੱਡੋ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ठीक है। सज्जे पासे तो एक जीरो छड्डी, उस तो बाद 2 जीरो छड्डियां, ठीक है। 2 डिजिट छड्डते मतलब 2 जीरो कट देनियां, 2 डिजिट छड्डे हुण 1 आ गया ते 1 दी जगह असीं की लगा देना पॉइंट, तो इहदा मतलब आंसर साडा आया 282.89 ये आंसर होएगा। इहनूं ध्यान नाल समझना, ये पॉइंटां वाले थोड़े जे कन्फ्यूज करदे हुंदे आ पर इन्ने भी ज़्यादा औखे नहीं हन कि तुहानूं ना आउण, तो इहनूं चंगी तरह तुसीं हुण कर लेना है ਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, तो ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਮ ਹੈਗਾ 7th, ठीक है। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ठीक है। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਦੀ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो आ देखो हुणे की है भी पॉइंट वाला है, तो सब तो पहला की हैगा तुसीं इत्थे बटा लगाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 आया, पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने देखो 0 ते 2 यानी कि 2 डिजिट ने, तो 2 जीरो लगातियां, ठीक है। तो इहदा मतलब आ गया 2/100। हुण तुसीं इहदा की करना है प्यारे विद्यार्थियों वर्ग, ठीक है। की करना है वर्ग, तो वर्ग 2 दूनी किन्ने हो गए 4, थल्ले किन्ना आ गया 100 ਦਾ वर्ग किन्ना आ जाएगा 100 ਦੇ ਨਾਲ 100 मतलब कि 1 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, यानी कि 100 गुणा 100 कितना ਹੁੰਦਾ है, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 10,000, ठीक है। 10,000 मतलब 100 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਆ 10 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ तो 2 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ 100 है 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ 1000 है 1000 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 जीरो लगा देनी है, ओके। इस तरीके ना समझ आई गल। तो इस तो बाद हुण की करना है, हुण अगला काम है देखो इनू दोबारा दशमलव विच चेंज करना, तो किन्नियां जीरो आ देखो 1 जीरो हटाई, ठीक है। एक डिजिट एक साडा ये डिजिट हैगा, उस तो बाद अगे कुछ नहीं हैगा। हुण इत्थे हुण तुसीं गलती करन दे चांस होने, अगली जीरो हटाई इत्थे 1 जीरो लगा दो, ठीक है। समझे मेरी गल, इत्थे आंसर लिखना, एक डिजिट छड्डिया, ठीक है 4 लिखता, उस तो बाद अगे कुछ नहीं सीगा, आ जीरो हटाई 1 जीरो इत्थे लगाती, आ जीरो हटाई ए जीरो मोरे लगाती, आ जीरो हटाई ए जीरो इत्थे लगाती, ते 1 की जगह असीं की लगाने आ पॉइंट, तो ये आ गया 0.004। कभी गलत होएगा ही नहीं, कभी भी तुहाडा आंसर गलत नहीं होएगा जे तुसीं मैथड प्रॉपरली यूज करोगे। ये मैथड है, समझे मेरी गल। तो ये मैथड नूं ध्यान नाल करना हैगा, इहनूं बार-बार रिपीट करो, दोबारा करो, सम 2-2 बार करो, तो जिन्नी देर तुहानूं आउंदा नहीं उन्नी देर दोबारा करदे रहो। लास्ट सम हैगा इहदे विच 8th सम की हैगा, हुण देखो 0.014। हुण की करांगे देखो पॉइंट हटा के की आया 1 आ गया, उस तो बाद 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, ठीक है। तो ये आ गया हुण इन्हां दा आ जीरो जिहड़ियां मोहरे लगियां इन्हां दा ते कोई मायने है नहीं, इस करके असीं इत्थे 40 नूं एज इट इज लिख देना, डिवाइड बाय 1000 दी पावर कितनी आ गई जी 2, पावर कितनी आ गई 2। तो हुण तुसीं की करोगे 14 into 14 डिवाइड बाय 1000, कितनियां जीरो ने 1000 च 3, तो ऊपर हैगा स्केयर, इस करके 3 दियां जीरो दियां डबल कर देनियां, 6 जीरो इत्थे आ गईयां। 16 16 कितने हो गए 16 सॉरी 14 हैगा, 14 गुणा 14 कितने हो गए 196, ठीक है। तो ये स्केयर सारिਆਂ ਨੂੰ पता होने चाहिए ने, फिर ही ये होना।
ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ 3 0 ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 3 0 ਹੋ गया 1 2 3 4 5 6 ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ अगेन देखो ਹੁਣ सौखा ही काम हो जाना आ 0 हटाई आ 6 लिखता ठीक है आ 0 हटाई 9 लिखता ए 0 हटाई 1 लिखता अगली 0 अगे हुण कुछ नहीं हैगा ए 0 हटाई 1 0 इत्थे लेता आ 0 हटाई 1 0 इत्थे लेता आ 0 हटाई 1 0 इत्थे लेता फिर 1 की जगह की लेता पॉइंट ते तुहाडा आंसर हो गया। देखो तो कितना सौखा आ ਹੁਣ करना तो तुसी है ना ठीक है मैं तो समझाता तुहानू करना तुहाडा काम है क्लीयर ओके जी। उस तो बाद प्यारे विद्यार्थियों नैक्सट साडा सामने विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्केयर गिव रीजन गिव रीजन दे विच बच्चों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज़ का ध्यान रखना है देखो तुसी स्केयर फाइंड आउट कीते सी ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਫਾइंड आउट ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 30 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾइंड आउट ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਫਾइंड आउट ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ किसी भी नंबर दे वंस प्लेस ते किसी भी नंबर ते वंस प्लेस ते 2 3 7 ਜਾਂ फिर 8 आ जाता है ਜਾਂ फिर ऑड जीरोस आ जांदियां ने ठीक है याद रखनी है टांग संख्या होवे जीरोस दी ठीक है ऑड जीरोस ਤਾਂ फिर प्यारे विद्यार्थियों वो परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन यही है देखो 177 तो 177 ਦੇ वंस प्लेस देखो ये वंस प्लेस की गल हो रही है वंस प्लेस से की है 7 तो 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं होएगा। उस तो बाद इतने अगला हैगा 1058 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 8 आ रहा ਇਹਦਾ मतलब ये भी एक परफेक्ट स्केयर ਜਿਹੜਾ ਉਹ नहीं हैगा। अगले ਵਿੱਚ अगेन 8 आ रहा तो ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं हैगा 3 आ रहा तो ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं आ रहा 2 हैगा ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं है इतने जीरोस ਤਾਂ है पर ऑड है जीरोस ਤਾਂ है पर ऑड है इस करके ये भी स्केयर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ नहीं होएगा ठीक है। अगले ਵਿੱਚ भी ऑड zeros odd number of zeros है this will be not a perfect square again 7 है तो 7 भी square परफेक्ट स्केयर नहीं होएगा ऑड नंबर ऑफ जीरोस ने ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं होएगा। अगले विच 5 जीरोस ने ठीक है 5 जीरोस ने 1 2 3 4 5 तो ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं हैगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो कोई भी नहीं होया फिर ठीक है तो इसका आंसर की आ जाना इन्हां विचों कोई भी परफेक्ट स्केयर नहीं है ठीक है सारे परफेक्ट स्केयर नहीं हैं ओके। तो उस तो बाद नैक्सट हैगा वट विल बी दी नंबर ऑफ जीरोस इन दी स्केयर ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स कितनियां जीरोस होणगियां देखो 90 दा स्केयर ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान नाल समझो क्वेश्चन है वट विल बी दी नंबर ऑफ जीरोस इन दी स्केयर ऑफ फॉलोइंग नंबर साडे को 90 है 90 दा जे तुसी स्केयर कर दिओ तो 90 दा स्केयर कितना आना देखो सिंपल जी गल है 9 × 9 81 ते इत्थे एक जीरो दी जगह तुसी 2 जीरो लिखणियां हुंदियां ईवन हुंदियां ने ठीक है जिदा 10 का स्केयर करते हो तो 10 का स्केयर कितना होंदा है 100 का स्केयर करते हो तो 10,000 ओके इहदे विचों 1000 का स्केयर करते हो तो वो 1 2 3 4 5 6 जीरो होंदियां तो ईवन जीरोस होणगियां ठीक है डबल कर देनियां जिदा पहले विच 1 जीरो है तो कितनियां जीरो हो गईयां 2 तो इसदा आंसर कितना आएगा 2 जीरोस। अगले विच भी अगेन 1 जीरो है 120 दे विच भी तो इहदे विच भी कितनियां जीरो हो जानियां फिर 2 जीरोस 4 जीरोस आ 2 जीरोस आ ते 4 जीरोस आ जाणगियां 3 जीरोस आ ते इहदे स्केयर जदों तुसीं इहदा स्केयर करोगे तो उस विच 1 2 3 4 5 6 जीरोस आणगियां ठीक है। इदां ही अगले विच कितनियां 4 जीरोस तो 4 जीरो की जगह फिर कितनियां 8 जीरो आणगियां मतलब जे तुसीं 8 ये कितना 80,000 है 80,000 का वर्ग करते हो स्केयर करते हो 8 वाड़िया 64 64 आ गया 64 के नाल 8 जीरोस आणगियां। अगले विच 4 आ तो 4 2 आ सॉरी 2 की जगह 4 जीरोस आ जाएंगे जो इसका स्केयर तुसीं करोगे ओके। तो नंबर ऑफ स्केयर की आ जाने नंबर ऑफ जीरोस कितनियां होणगियां डबल जिन्नी जीरो है वह की आ जाना जो स्केयर कढ़ना तो डबल हो जानियां जे 1 आ ते 2 हो गई 3 आ ते 6 हो जानियां ठीक है जे 4 आ ते फिर 8 हो जानियां ठीक है 5 आ ते फिर 10 हो जानियां डबल करनियां ने ओके। अगला क्वेश्चन हैगा स्केयर ऑफ दी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर और ईवन नंबर ਕਿਹੜਾ ऑड ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ऑड ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ऑड ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ऑड ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ऑड डिजिट ਆ, वंस प्लेस देख लो, ਇਹ ਵੀ ऑड ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਈਵਨ ਆ, तो ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ। 9 ऑड ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ऑड ਹੈ, वंस प्लेस ਤੇ 9 ਆਉਣ ਕਰਕੇ, तो ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ऑड ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ 4 ਆ ਗਿਆ, 4 ਈਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ। ऑड है, ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ऑड। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 6 ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ। 7 ਦਾ ਵਰਗ, 7 ਕੀ ਆ, ऑड ਦਾ ਸਕੇਅਰ ऑड ਹੋਏਗਾ, तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ऑड। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 6 ਹੋਣ ਕਰਕੇ 6 ਕੀ ਆ, ਈਵਨ। ਈਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ਼ਟ ਸੰਖਿਆ, ऑड ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਟਾਂਕ, तो ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, तो ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਇਨ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ। तो ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 41 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, 01 ਆ ਜਾਣਾ। 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਤਾ 16, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ 8 ਆਊਗਾ, तो ਇਹ 1861। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, 1681, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਈਵਨ ऑड ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, 1। तो 1 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ, 1 ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 41 ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਤੇ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। अगले विच 1 है, तो ਇਹਦੀ वंस प्लेस से भी 1 होएगा। इत्थे 9 है, तो 9 into 9 81, तो इत्थे भी वंस प्लेस से 1 होएगा। 9 है 81, एक ही होएगा, 2 दूनी 4, तो वंस प्लेस से 4 होएगा। जो तुसीं 62 ਦਾ वर्ग कढोगे, उस तो बाद 2 दूनी 4, अगेन ਇਹਦੇ 4012 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਉਹਦਾ वंस प्लेस ਤੇ डिजिट ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਹੀ ਆਏਗਾ। 8 8 64, 4 ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਵਾਲੇ 64 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ वंस प्लेस से ਕੀ ਆ, 4 ही आना है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 3 है, तो इतने 3 आ गया वंस प्लेस से। 3 3 9, तो वंस प्लेस से 9 आएगा। 3 3 9, ओके। 7 7 49, 9 7 7 49, 9 4 चौके 16, 6 आएगा। 4 चौके 16, 6 आएगा। 6 छिका 36, 6 आएगा। 6 छिका 36, 6 आएगा। 5 5 25, 5 आएगा, तो 5 5 25, 5 आएगा। ठीक है, तो वंस प्लेस के डिजिट लिखे ने मैं, होर कोई नहीं है। वंस प्लेस के डिजिट आ वो ये आएंगे। ओके, तो ये विचों पहला असीं सम पहले 5 करने ने, उस तो बाद बाकी सम जिहड़े आ नैक्सट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू वेरी मच। अज का तुहाडा टॉपिक समाप्त होया, इनू सारे बच्चों ने नोट कर लेना है।